Hello and welcome to this channel. I'm Poonam Dua from MN Education Academy of Literature. This is mock test number 8 and in this video our questions will be related to literary ages. We are bringing a series of important questions for all literature aspirants. Complete explanation and additional information is also being provided along with each answer. Watch the whole video carefully, gain knowledge, test your knowledge and apply this knowledge to your exams most importantly. And please do not forget to share and subscribe the channel. Let us start with the first question of this video, question number 71 actually. During the reigns of which monarchs did चौसर लिव? इनमें से कौन से किंग्स के शासन काल के दौरान चौसर रहा करते थे? द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड 3, Richard 2 and Henry 4, option number D. Geoffrey Chaucer, an English poet and author widely considered the greatest English poets of the Middle Ages, and he is best known for Canterbury Tales. In the career, he was trusted and aided by 3 successive kings, Edward 3, Richard 2 and Henry 4. Please do learn all these names carefully and do note everything that is being told in this video. That will help you a lot. Question number 72. During which sets of dates did Chaucer live? इनमें से कौन सी dates के दौरान Chaucer रहा करते थे? The correct answer 1340 to 1400. The period between 1340 to 1400 is also called the age of Chaucer. Okay, next move on to question number 73. ब्लैक डेथ से रिलेटेड है. जैसे आजकल कोविड-19 फैला हुआ है ना, द सेम वे ब्लैक डेथ भी एक तरीके का एपिडेमिक हुआ करता था और इन सब ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. द एपिडेमिक ऑफ प्लेग दैट अकर्ड इन चॉसर्स एज. तो आपको 2-3 चीज़ें पता चल गई. ब्लैक डेथ है क्या, प्लेग है, कौन सी एज में था, चौसर की एज में था. सो ब्लैक डेथ वॉज अ डेवस्टेटिंग ग्लोबल एपिडेमिक ऑफ ब्यूबोनिक प्लेग. तो ब्यूबोनिक प्लेग इसका दूसरा नाम है ब्लैक डेथ का ही. तो ब्यूबोनिक प्लेग से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं. दैट स्ट्रक यूरोप एंड एशिया इन मिड 1300s. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 74. Question number 74 asks about 2 poets, Caedmon and Cynewulf. Caedmon and Cynewulf were 2 famous poets and they were, according to this question, either Chaucer's contemporaries, Chaucer's predecessors, Chaucer's successors or not definitely known. The correct answer is option number B. ये दोनों Chaucer's के predecessors थे. Chaucer से भी पहले के टाइम में रहा करते थे and it is better to say them old English poet. Caedmon is the earliest English poet whose name is known and Cynewulf is one of 12 old English poets known by name and one of the 4 whose work is surviving even today. तो इन 4 poets के इन 4 ओल्ड पोएट्स के आई मस्ट से जिनका वर्क आज भी सर्वाइव करता है, इनके नाम है कैडमन, बेड, एल्फ्रेड एंड सिनवुल्फ. और इनमें से सिनवुल्फ की इवन बायोग्राफी भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास. कैडमन, बेड और एल्फ्रेड, दीज 3 आर द पोएट्स हुज बायोग्राफी इवन एग्जिस्ट्स टुडे. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 75. वॉर ऑफ रोजेस शायद सबने सुना होगा लेकिन शायद डिटेल में नहीं पता होगा किसके बीच में लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. द वॉर ऑफ रोजेस वॉज फॉट बिटवीन द हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लिंसेस्टर. वॉर ऑफ रोजेस एक 30 साल तक चली हुई एक वॉर थी जो कि 1455 से लेकर 1485 तक चली थी. इन इंग्लिश पोइट्री द सीरीज ऑफ सिविल वॉर दैट प्रिसीडेड द राइज ऑफ ट्यूडर्स एज वेल. इस वॉर के बाद ट्यूडर्स का राइज हुआ था एंड एज आई टोल्ड इट वॉज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लिंसेस्टर. ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. In which year was the Globe Theatre built? ग्लोब थिएटर को इनमें से कौन से ईयर में बिल्ट किया गया था? तो एक्चुअल में बिल्ट किया गया था इफ वी से कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड. तो कंस्ट्रक्शन 1598 में स्टार्ट हुई थी और ओपन हुआ था 1599 में.
Globe Theatre. The Globe Theatre was a theatre in London associated with William Shakespeare, and it was opened for public in 1599 by Shakespeare's playing company, the Lord Chamberlain's Men. क्या आप जानते हैं कि ग्लोब थिएटर एक बहुत ही वास्ट, बहुत ही विशाल थिएटर था, और आज से 400 साल पहले की हम बात कर रहे हैं लगभग, उस टाइम में भी इतना अच्छा, इतना वास्ट, इतना टेक्निकल थिएटर बनाया जाना बहुत ही कमाल की बात है एक्चुअली। और इस थिएटर में 3000 लोगों की कैपेसिटी थी। कैन यू इमेजिन, 3000 लोग इसमें एक साथ बैठ सकते थे और 1000 लोग इसके यार्ड में खड़े हो सकते थे। कुछ इस तरीके का दिखाई देता था ग्लोब थिएटर। कंस्ट्रक्शन स्टार्टेड इन 1598 एंड ओपन फॉर पब्लिक इन 1599, बट अनफॉर्चुनेटली 1613 में एक वॉर में इतना अच्छा, इतना वास्ट, इतना टेक्निकल, इतना ब्यूटीफुल थिएटर डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं क्वीन एलिजाबेथ वन की। क्वीन एलिजाबेथ वन ascended the throne of England in which of the following year? The correct answer is option number A, 1558. क्वीन एलिजाबेथ ट्यूडर्स डायनेस्टी की लास्ट मोनार्क थी, और उनका जो टाइम पीरियड रहा था दैट वाज फ्रॉम 17 नवंबर 1558 टू 24 मार्च 1603। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जैकोबियन एज के बारे में हमारा अगला क्वेश्चन। द जैकोबियन एज कवर्स विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? द करेक्ट आंसर इज 1603 टू 1625। जैकोबियन लिटरेचर, बॉडी ऑफ वर्क्स रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ जेम्स वन। तो आप लोग प्लीज किंग का भी नाम याद रखिए। किंग जेम्स वन के टाइम पीरियड के साथ ही जैकोबियन एज है, तो जे और जे को एसोसिएट करके आप याद भी आराम से रख सकते हैं। जैकोबियन पोएट्री इंक्लूडेड द ग्रेसफुल वर्जन्स ऑफ पोएट्स लाइक जॉनसन एंड कैवेलियर पोएट्स, बट ऑल्सो द इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री ऑफ जॉन डॉन एंड अदर मेटाफिजिकल पोएट्स ऑल्सो एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दिस एरा। Okay, question number 79. Now we are talking about Caroline age. Caroline age इनमें से कौन से टाइम पीरियड में थी? The correct answer is 1625 to 1649. Caroline era refers to the period of English and Scottish history named for the 24 years reign of King Charles I. तो कैरोलाइन को हम किसके साथ एसोसिएट करते हैं? किंग चार्ल्स वन के साथ। C. Again, you can make a match. So the term is also actually derived from Carolus, the Latin meaning for Charles. Okay. Now move on to the next question. Next question is about some Commonwealth time period. So under Cromwell Commonwealth period covers the period from which of the following? The correct answer is option number D. Literature of the 17th century may be divided into two periods, the Puritan age or the age of Milton, which is further divided into Jacobean and Caroline period, and इसके बाद आया था Commonwealth period, जिसको कि हम इंटररेग्नम पीरियड भी कहते हैं। द पीरियड बिटवीन एग्जीक्यूशन ऑफ चार्ल्स वन ऑन 30th January 1649 एंड द अराइवल ऑफ हिज सन चार्ल्स टू इन लंडन ऑन May 29, 1660. This period is called Commonwealth period, which marked the start of restoration. During the interregnum, England was under various forms of republican government as the Commonwealth of England. That is why it is called Commonwealth period as well. तो आप सब कुछ याद रखिए, सारे फैक्ट्स को देखिए, नोट करिए, आपको आराम से सारी चीज़ें याद रह जाएंगी अगर आप बहुत ही डिटेल में इन वीडियोस को देखते हैं और साथ ही साथ सारे पॉइंट्स भी नोट करते हैं। तो okay, now we have reached to the end of this video, and by clicking over here you can reach to the next part of the video. Thanks a lot for watching and best of luck for your exams.